Hello everyone, very good morning. Today we are going to start the second assignment of electrostatics. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो कोचिंग असाइनमेंट है उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो बुकलेट्स आपके पास है. सेकंड असाइनमेंट निकालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. 2 points A and B are located in diametrically opposite direction of a point charge of plus या positive 5 microcoulomb. देखिए आपके पास इस तरह से positive 5 microcoulomb का चार्ज गिवन है. चार्ज इज 5 into 10 raised to minus 6 coulomb. ठीक है, इसके डायमीटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस चार्ज, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस इस तरह से जो लाइन है उसमें चार्ज को, किसी चार्ज को मूव किया जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. यू कैन से 2 points A and B are located diametrically opposite directions of point charge of 5 microcoulomb at distance is 4 meter and 2 meter. The distance of point A is 4 meter and distance of point B is 2 meter. This is given in the question. Here now it is saying that the potential difference between point A and B. तो point A और B के बीच में हमने potential difference निकालना है. That is the potential difference between point A and B. VAB is equal to VB minus VA. This you have to find out. Now you know very well the formula for V is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is the general formula for electric potential. ठीक है, तो यहाँ पर हमने VB और VA दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए आपके पास VB कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon distance from point B. इसी तरह से VA कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by distance of point A. ठीक है, we have to substitute these values. तो अगर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं then we get from here this VAB is equals to, देखिए कॉमन ले लीजिए Q upon 4 pi epsilon naught you can take common. So Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon RB minus 1 upon RA. Now you can substitute the values को substitute करेंगे and find the final answer. Clear? So values are given here. RA is given 4 meter. This is RA. RB is given 2 meters. Q is given 5 into 10 raised to power minus 6. Coulomb means 5 microcoulomb. Clear? So substitute all these values. You will get here it is equals to 5 into 10 raised to power minus 6. The value of 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to power 9 into it is 1 by, here it is RB and RB is equals to, that you have given the value, it is 2 meters. Clear? So 1 by 2 minus 1 by 4. 1 by 2 minus 1 by 4. Make the calculations. Hurry up. You will get it. 5 into 9 that is 45 into 10 raised to power 3 into it is 4 minus 2 means 2 by 4. It is 1 by 2. So you will get the option. It is 45 को डिवाइड कर लीजिए आप, यहाँ पे ये बचेगा 1 by 2. 2 से डिवाइड करेंगे then you will get 12.5. तो 12.5 वाला ऑप्शन देखिए, that is your B option. 1.125. It is 1.125 into 10 raised to power 4 volt. This is your answer. So question 1 option B. Clear? So this is the right answer of the question first.
Now just go through the question number 2. Similarly, question number 2 is there. Just to go through it, question number 2 is a charge positive Q is placed at the origin of XY axis. आपके पास you have given this is the XY axis, this is X, here it is Y, clear? इसके origin O के ऊपर, this is the origin O. Some charge is placed and that is positive small q. तो यहाँ पर xy plane का जो origin है उसके ऊपर positive small q charge placed है. Clear? Next, as shown in the figure, the work done in taking a charge capital Q from point A to B is. देखिए this is the point A, यहाँ से हमने कोई charge ले जाना है up to this point. This is point A. This is point B. Coordinates are given. A point के coordinates given है, B point के coordinates given है. Clear? तो आपने कैपिटल Q चार्ज को ले जाना है उठा के इस पॉइंट A से पॉइंट B तक. Coordinates given है A and 0 and here the coordinates are 0 and small b. Clear? तो इस तरह से सिचुएशन गिवन है. You have to move the charge capital Q from point A to point B. Now it is saying along the straight line you have to find out the work done. तो work done find out करना है and work done you know very well, that is W is equals to, it is Q into delta V. Delta V means that is the potential difference or Q into V. Clear? समझ रहे बात को? So V again you have to find out. Okay, so we can say that it is equals to Q capital V B minus VA. That is the potential difference. जब हम इस कैपिटल Q चार्ज को पॉइंट A से ले जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल. क्लियर? तो इस कैपिटल Q को पॉजिटिव Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करना है और इसको मूव करने के लिए कितना वर्क डन हुआ दैट वी हैव टू कैलकुलेट. क्लियर? सो देखिए यू हैव गिवन द वैल्यूज हियर. You have to find out VB and again the situation is same. यहां पर VB देखेंगे कितना आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught. समझ रहे बात को? एंड इट इज Q, पॉजिटिव Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर पॉइंट A लाई कर रहा है, पॉइंट B लाई कर रहा है. दोनों पॉइंट्स के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो दैट इज Q अपॉन, दिस इज द डिस्टेंस RB. तो देखिए RB कितना है, पॉजिटिव Q से B पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 एंड B, इट इज स्मॉल b. इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ RB वी कैन राइट हियर इट इज स्मॉल b. सिमिलरली VA इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन, अब इस Q से पॉइंट A का डिस्टेंस है, देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल a एंड 0, तो x coordinate is A, therefore this distance is small a. So we can substitute these two values here and finally we will get the right answer. So here we can say it is Q, कॉमन ले लीजिए, देखिए Q upon 4 pi epsilon naught. So Q upon 4 pi epsilon naught, here it is 1 upon B minus 1 upon A. Or on solving we get W is equal to capital Q small q upon 4 pi epsilon naught. Here it is A minus B upon AB. So this is the right answer. This is your option A. So you can say this is the option A of question number 2. So this is about question number 2. Next is, that is question number 3. Go through the question number 3. These questions are related with electric potential. ठीक है? They are quite simple. Just they need the attention. So question number 3 is there.
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। टू थिन वायर रिंग्स ईच हैविंग रेडियस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल डी। आपके पास वायर के 2 रिंग्स दिए हुए हैं जिनका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, द सिचुएशन इज लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट रिंग and here it is the second ring. Both have radius capital R, radius capital R. तो इस तरह से हमारे पास 2 rings दिए हुए हैं and they have radius capital R. They are separated by certain distance. Here this distance is given small d. ठीक है, 2 वायर के थिन रिंग्स हैं, थिन वायर के रिंग्स हैं, उनका रेडियस है कैपिटल आर और रिंग्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है स्मॉल डी। क्लियर? विद देयर एक्सिस कोइंसाइडिंग द चार्जेस ऑन 2 रिंग्स आर पॉजिटिव q एंड नेगेटिव q। ठीक है, ये जो रिंग है इनके ऊपर जो चार्जेस रखे हैं, एक रिंग के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव q एंड सेकंड रिंग के ऊपर चार्ज है नेगेटिव q। ठीक है, दोनों रिंग्स के ऊपर चार्जेस प्लेस्ड हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव q प्लेस है और दूसरे रिंग के ऊपर नेगेटिव q चार्ज प्लेस्ड है। नाउ नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 रिंग्स इज। देखिए ये बोल रहा है दोनों जो रिंग्स हैं हमारे पास, इनके सेंटर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट इट इज कैपिटल V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V2। क्लियर? सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, नेम रख लीजिए, लेट इट इज V, या 1 रिंग है, सेकंड रिंग है, दैट इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2। दोनों के सेंटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक रिंग का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस सेकंड रिंग का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 एंड वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए यहां पर V1 कितना है, हियर V1 इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा V1 हमारे पास 2 चार्जेस हैं, वन इज पॉजिटिव q एंड सेकंड वन इज नेगेटिव q। तो V1 के सेंटर के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है तो दिस इज द सिचुएशन वी आर हैविंग, दिस इज द पॉइंट, दिस इज पॉजिटिव q हियर एंड दिस इज नेगेटिव q हियर। दिस इज द सिचुएशन। इस पॉइंट के ऊपर हमने अब पोटेंशियल देखना है, इट मींस वी आल्सो नीड दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस वी नीड हियर। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, d² प्लस r²। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज नेगेटिव q फ्रॉम द फर्स्ट रिंग। क्लियर? तो इस तरह से ये पॉइंट दिया है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉजिटिव q एंड देन ड्यू टू नेगेटिव q। इट मींस वी विल फाइंड आउट इट लाइक दिस। सो पहले हम पॉजिटिव q की वजह से देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दैट यू नो वेरी वेल, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव q फ्रॉम दिस पॉइंट इज कैपिटल R, सो इट इज कैपिटल R प्लस हम देख रहे हैं नेगेटिव q की वजह से, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव q है तो नेगेटिव q राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव q फ्रॉम दिस पॉइंट and that is the under root d² plus r²। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। क्लियर? इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेकंड रिंग। ठीक है, अच्छा जी, तो फॉर सेकंड रिंग आप देख रहे हैं V2
इक्वल्स टू, देखिए अब सेकंड रिंग के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। ये सेकंड रिंग का सेंटर है, दिस इज द चार्ज नेगेटिव Q हियर एंड हियर इट इज द चार्ज पॉजिटिव Q। तो बोलने का मतलब हमारे पास पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q चार्जेस हैं, उनकी वजह से सेकंड रिंग का जो सेंटर है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना, जिसका नेम हमने V2 रखा हुआ है। तो देखिए अगेन वी विल यूज दिस V2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव Q की वजह से, फिर पॉजिटिव Q की वजह से देखते हैं, अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय, अभी नेगेटिव Q इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, कैपिटल R डिस्टेंस पर है, क्लियर, एंड प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू पॉजिटिव Q। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ड्यू टू पॉजिटिव Q अगर बात करते हैं, देन दिस डिस्टेंस इज अगेन इक्वल्स टू अंडर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, क्लियर। तो हमारे पास V1 और V2 की वैल्यूज आ गई। These two values we will substitute in equation number 1. So we can say put equation 2 and equation 3 in equation 1. So therefore equation 1 implies now it is capital V is equals to, देखिए बेटा आप यहां से चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी जगह कॉमन है आपके पास, so you can take it as Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into, here it is 1 upon R, 1 upon capital R, here it is negative sign, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया। अब इस तरफ आ जाइए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हमने ले लिया, ये बचा माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, इट इज माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, ठीक है। देखिए अब यहां पर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस माइनस विल बिकम हियर इट इज पॉजिटिव, सो इट इज प्लस 1 अपॉन R, माइनस एंड माइनस, क्लियर। नेक्स्ट इज हियर इट इज पॉजिटिव साइन, हियर इट इज नेगेटिव, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही कॉमन आएगा, सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सिमिलर क्वांटिटीज विल बी एडेड टुगेदर, ये 1 upon r plus 1 upon r, here it is negative of this under root d square upon r square minus 1 upon under root d square r square, so you will get it is capital V is equals to, देखिए यहां से हम बोल सकते हैं आ जाएगा 2 और इधर भी आएगा 2, we can take it common, so 2q upon 4 pi epsilon naught and here it is 1 by r minus 1 upon under root d square plus r square, क्लियर। तो इस तरह से देखिए दिस इज योर ऑप्शन, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, इस 2 से हम इस 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो जिससे कैंसिल करेंगे देन हमारे पास यहां बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो हियर इट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट into 1 by r minus 1 upon, or we can write it as Q divided by 2 pi epsilon naught, here it is 1 by capital R minus 1 upon under root d square plus r square, ठीक है। So this is the question number 3, the option C. So option C is the right choice here. Just go through the question number 4. So question number 4, that is question number 4 is there, a hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge placed at point P as shown in the figure। आपके पास कोई रिंग गिवन है इस तरह से, ठीक है, दिस इज hollow conducting sphere, hollow conducting sphere दिया है, और hollow conducting sphere के केस में here it is written point P
A, B, C. This is point P, this is point C, here it is point B and here it is point A. तो इस तरह से आपके पास एक hollow conducting sphere given है. Clear? तो आपके पास क्या बोला गया है? Let VA is the electric potential at point A, VB is the electric potential at point B, VC is the electric potential at point C. Then तो तीनों में बताइए, देखिए this is a sphere, ठीक है, hollow sphere है. It means it will behave like equipotential surface, ठीक है. So we can say this hollow conducting sphere behaves as equipotential surface. तो एक equipotent surface की तरह है. इसका मतलब इसकी potential at all the points A, B, C are similar. So therefore VA is equal to VB equals to VC. तो आपका ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन इज दैट इज योर डी ऑप्शन, which implies VA is equals to VC. This is according to the option D. Clear? Next is question number 5. Just see the question number 5. What is that? So question number 5 is there. Yes, question number 5. A test charge is moved from lower potential point to higher potential. The potential energy of the test will. देखिए आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करना है. देखिए लेट अस कंसीडर कि आपने मूव करना है किसी टेस्ट चार्ज को कहां से, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग टू मेटालिक प्लेट्स. हमारे पास इस तरह से टू मेटालिक प्लेट्स हैं. दीज आर द टू मेटालिक प्लेट्स और यू कैन से दिस इज अ कैपेसिटर. कैपेसिटर भी बोला जा सकता है. इसको हमने कनेक्ट किया है इस तरह से. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. क्लियर? यहां पे अब हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट सम की हियर और स्विच व्हिच यू कैन से हियर इट इज अ की. क्लियर? अच्छा जी, आपको बोला जा रहा है कि टेस्ट चार्ज को मूव करना है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में. देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है. आपके पास लोअर पोटेंशियल में कितनी एनर्जी होगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा. चार्ज को लोअर पोटेंशियल से मूव करना है. चार्ज कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल. नेम रख लेते हैं लोअर पोटेंशियल का, लेट इट इज V1, ठीक है, टू हायर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल इज नेम्ड एज V2. बोलने का मतलब है हमने चार्ज को मूव करना है कहां, हमने चार्ज को V1 से लेके जाना है किधर, V2 तक. V1 की वैल्यू कैसी है, स्मॉल. V2 की वैल्यू कैसी है, लार्ज. ठीक है. देन अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन. हाँ जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन अभी करते आ रहे हैं. तो हियर W will be equals to what, W equals to Q into delta V. ठीक है. So we can say here work done W is equals to, कोई चार्ज है टेस्ट चार्ज, that is Q naught into delta V means it is V2 minus V1. ठीक है. देखिए यहां पर क्या बोला गया है, here this V2 is greater than V1. V2 V1 से ग्रेटर है, तो therefore W is positive. समझ रहे हो बात को. तो W क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
will increase। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट मींस वी हैव टू मूव द चार्ज लाइक दिस, V1 से V2 में लेके जाना है, V2 इज लार्जर एंड V1 इज स्मॉलर। तो हम जनरल फार्मूले से ही कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट रहने देते हैं। ठीक, यहीं से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हो गया। टेस्ट चार्ज को मूव किया हमने V1 से V2, तो ऐसा करने के लिए वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन मींस दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, सो पोटेंशियल एनर्जी इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव वैल्यू। अगर देखिए क्वेश्चन इस तरह से होता कि चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो मींस ये वाली वैल्यू हाई होती अगर, और ये वाली वैल्यू अगर लो होती, तो देखिए वर्क डन क्या आना था, लो माइनस हाई नेगेटिव, तब फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी थी, डिक्रीज। अब की बार क्या है, दिस V1 इज स्मॉलर एंड V2 इज लार्जर, तो हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव मींस इंक्रीज, तो इसलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। नाउ यू कैन रिमेंबर दिस, जब भी हम किसी चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करते हैं, देन देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। लो से हाई पोटेंशियल में ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। हाई से लो पोटेंशियल में लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। तो अब की बार हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज योर बी ऑप्शन। सो फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन देखिए। Clear? Now just go through the question number 6. Question number 6 is there. In case of question number 6, it is saying that consider two conducting spheres of radii R1 and R2. आपके पास टू कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए हैं जिनका रेडियस है, एक का रेडियस है R1 और दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है R2। क्लियर, इफ टू आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है, एंड लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर। देखो आपके पास टू स्फीयर्स दिए हुए हैं, देयर आर टू स्फीयर्स लाइक दिस, एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2। दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज सेम, दोनों की पोटेंशियल सेम है, लेकिन एक बात है, R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, इसका नाम R1 रख लेते हैं, इसका नाम R2। R1 इज ग्रेटर देन R2 बट देयर पोटेंशियल्स आर सेम। क्लियर, अब ये बोल रहा है अगर पोटेंशियल सेम है लेकिन लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज देन स्मॉलर स्फीयर, लार्जर स्फीयर का जो चार्ज है वो स्मॉलर स्फीयर के चार्ज से Q1 इज आल्सो ग्रेटर देन Q2। क्लियर, इस तरह से है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या है, हाँ जी, चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की गई है। चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज डेंसिटी को व्हाट विल हैपन, किसकी चार्ज डेंसिटी कैसे होगी, हाँ देखिए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। Q अपॉन A मींस 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दिखती सी बात है, जिसका रेडियस लार्जर होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, या फिर जिसका रेडियस स्मॉलर है उसकी चार्ज डेंसिटी लार्जर होगी। तो ऑप्शन बी इज देयर, द चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज मोर। ठीक है, इट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, R स्फीयर। तो देयरफॉर चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉलर स्फीयर इज मोर। तो स्मॉलर स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, मोर है, क्योंकि साथ में देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं इट इज Q अपॉन, तो Q भी स्मॉलर के लिए लार्जर है और रेडियस स्मॉलर के लिए कम है। तो दोनों ही चीजें इस चीज को फेवर कर रही हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो स्मॉलर स्फीयर के लिए ज्यादा होगी। आप समझ गए ना बात को, ठीक है। सो हियर यू कैन से
हियर इट इज ऑप्शन देखिए कौन सा है, आई थिंक इट इज बी ऑप्शन, ठीक है, जस्ट गो थ्रू बी ऑप्शन, यस। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, go through the question 7, it is also theoretical question number 7. Question number 7 is there, the magnitude of electric field is annular region of charge cylindrical capacitor। देखिए cylindrical capacitor के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, in case of we have already studied about electric field due to linear distribution of charge, if you remember this गॉसिस लॉ हमने यूज किया था, इस सिचुएशन में हम फाइंड आउट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल्स टू, इट इज q upon 2 pi epsilon naught rl। so electric field for cylindrical distribution is q upon 2 pi epsilon naught rl। from here we can say E is inversely proportional to small r, clear? So this electric field is inversely proportional to small r, this is your C option। so question number 7 it is C option। in case question number 8, go through the question 8। question 8 is there, a capacitor is made up of two circular plates of radius capital R separated by distance d। आपके पास टू सर्कुलर प्लेट्स गिवन है इस तरह से, these are the circular plates, ठीक है, both are separated by distance small d। दोनों के पास रेडियस की वैल्यू दी है, that radius is given capital R, this radius is a capital R, and it is also given here that this d is very less than capital R, here d is very less than capital R। तो इस तरह से टू मेटल की डिस्क्स दी हुई है, प्लेट्स दी हुई है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि इट विल बिहेव लाइक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यू कैन से, ठीक है। अच्छा, ये दोनों की थिकनेस भी दी हुई है, थिकनेस इज स्मॉल t। फाइंड द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द डिस्क इफ द मास ऑफ डिस्क इज स्मॉल m। देखिए ये जो बॉटम वाली आपके पास प्लेट है, इसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है और उस डिस्क का रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। ये बोल रहा है इस डिस्क को यहां से जंप करवाना है, तो जंप करवाने के लिए जैसे ही हम इन दोनों प्लेट्स को चार्ज करेंगे, तो मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सिमिलर चार्ज विल बी देयर ऑन दिस डिस्क। टू प्लेट्स दी हुई हैं, सर्कुलर प्लेट्स, नीचे वाली जो प्लेट है उसके सेंटर पे एक और डिस्क रखी हुई, ठीक है। इस डिस्क को यहां से जंप करना है, कैसे जंप करेगी, अगर हम इन प्लेट्स को चार्ज करेंगे तो सिमिलर चार्ज विल बी ड्वेल्ट ऑन दिस स्मॉल डिस्क एंड इट विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, डिस्क का अपना वेट भी होगा, ठीक है। सो वी कैन से फॉर जंपिंग ऑफ डिस्क, फॉर जंपिंग ऑफ डिस्क क्या होना चाहिए, F must be greater than equal to the weight of this small disk। इसके वेट के greater than equals to होनी चाहिए जो फोर्स लगेगी। This F is equal to Q into E, it must be equals to mg, clear? अब Q आपके पास गिवन नहीं है, Q is equal to C into V, आप समझ रहे बात को, and E is also not given, E is equals to, देखिए E is equal to dV upon dr, इस सिचुएशन में it is V upon d, it should be greater than equals to mg, ठीक है। आपको बोला गया इस कैपिटल V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, C is also not given, so you can substitute epsilon naught A upon d, here it is V to V means V square upon d, it is greater than equals to mg, ठीक है। एरिया इज आल्सो नॉट गिवन, तो एरिया यू हैव टू फाइंड आउट, सो वी कैन से इट इज एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन डी वी स्क्वायर अपॉन, हियर इट इज डी एंड डी कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर, क्लियर, is greater than equals to mg। Now from here you can find out the value of this capital V, so this implies V square is equals to or greater than equals to किसके आ जाएगा, mg d square divided by epsilon naught pi into r square, or you can say this capital V is greater than equals to under root of
mgt square upon epsilon naught pi r square. So this is the answer. तो आंसर देख लीजिए आपका, दिस इज योर सी ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी. ठीक है. So this is the right answer here. So capital V is greater than equals to under root mg d square upon epsilon naught pi r square. ठीक है. बोलने का मतलब है आपके पास सर्कुलर प्लेट्स गिवन है. दीज आर द टू सर्कुलर प्लेट्स. ठीक है जी. इन दोनों सर्कुलर प्लेट्स में से एक जो प्लेट है बॉटम वाली, वहां पर एक डिस्क रखी है और उस डिस्क की थिकनेस दी हुई है. द थिकनेस ऑफ दिस डिस्क इज स्मॉल टी एंड दिस स्मॉल टी इज वेरी स्मॉल. ठीक है. ये भी दिया हुआ आपके पास. अब आपको बोला जा रहा है कि इस डिस्क को यहां से जंप करवाना है. तो जंप कौन करवाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जैसे हम इन प्लेट्स की चार्जिंग करेंगे, they will behave like a parallel plate capacitor. तो एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है. जैसे ही इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो डिस्क यहां पर रखी है, इट विल आल्सो गेन द सेम चार्ज. इसके ऊपर भी सेम चार्ज आ जाएगा. तो जो चार्ज इस प्लेट के ऊपर आया वही इस डिस्क के ऊपर आया. इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल टेक प्लेस एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE की वजह से ये डिस्क जंप करेगी. लेकिन ये जंप कब करेगी? अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डिस्क के वेट से लार्जर होगी. तभी हमने बोला F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेट ऑफ दिस स्मॉलर डिस्क. ठीक है. नाउ F की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, दैट इज Q इनटू E. Q गिवन नहीं है, इसलिए हमें C इनटू कैपिटल V में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें कैपिटल V फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल V. तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल V की फॉर्म में. इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने कैपिटल V की फॉर्म में कन्वर्ट किया. C इज आल्सो नॉट गिवन. क्लियर. तो C फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D that we have substituted here. क्लियर. एरिया भी गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने रख दिया एरिया इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर. So from here we calculated the value of capital V, and the right option of this question is C option. You can go through the question 8 option C. Clear? चलिए next देखिए question number 9. Go through the question 9. Question number 9 is there. Yes, a parallel plate capacitor is made by placing n equally spaced plates connected alternatively. आपके पास n number of plates दी हुई हैं. देखिए सीधी सी बात है. For n plates, अगर आपके पास n प्लेट्स हैं तो n प्लेट्स के कितने कैपेसिटर्स बनते हैं वो हमने देखना है. The number of capacitors formed is n minus 1. ठीक है. कितने बनते हैं? n minus 1 बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 1 2 3. मेरे पास 3 प्लेट्स हैं 1 2 3. तो अभी देखिए एक कैपेसिटर ये बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है. इट मींस अगर हम 3 प्लेट्स यूज कर रहे हैं तब कैपेसिटर्स कितने बन रहे हैं? 2 कैपेसिटर्स बन रहे हैं. मींस जब भी हमारे पास n प्लेट्स होंगी तब हमारे पास कितने कैपेसिटर्स बनने हैं? n minus 1. क्लियर. तो इसी तरह से हमारे पास n प्लेट्स गिवन है और उनमें से कैपेसिटर्स बन रहे हैं n minus 1. ठीक है. इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लेट्स इज कैपिटल C, देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज, ये बोल रहा है कि इन्हीं 2 प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस है C. ठीक है. तो बताइए इन n प्लेट्स का कैपेसिटेंस कितना होगा? देखिए पैरेलल में होगा, अल्टरनेटिवली दे आर कनेक्टेड. अल्टरनेटिवली कनेक्ट करने का मतलब है हाउ दे हैव बीन कनेक्टेड. अल्टरनेटिव कनेक्शन मींस देखिए फॉर एग्जांपल हियर
हमारे पास ये प्लेट्स गिवन है लाइक दिस। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के किसी पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी प्लेट को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव मींस हियर, दिस इज नेगेटिव मींस हियर। अब जो मेटल की प्लेट्स हैं ये कौन सी है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहां नेगेटिव है। देखिए क्या होना है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव। देखिए अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर, समझ रहे हो बात को। इसी तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि 4 प्लेट्स हैं और 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं। और ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर कनेक्टेड अल्टरनेटिवली, मींस दे आर इन पैरेलल, ठीक है। तो हियर these plates are connected alternatively, ये अल्टरनेटिवली कनेक्ट की गई हैं। इट मींस द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो पैरेलल में आपको पता है देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। तो इसलिए आपके पास टोटल कितने कैपेसिटर बने हैं, n-1। तो हियर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 इनटू कैपिटल C। देखिए एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, 2 कैपेसिटर्स हो जाएंगे पैरेलल में तो हो जाएगा C प्लस C मीन 2C, 3 कैपेसिटर्स हो जाएंगे पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 3C। इसी तरह से n-1 कैपेसिटर्स होंगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा पैरेलल में, n-1 इनटू C। तो योर राइट ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन देखिए, दैट इज योर ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी। नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is there. Yes, go through it. Question 10. 2 spherical conductors, each of capacity C, are charged to a potential capital V and a minus V. देखिए आपके पास क्या गिवन है, 2 spherical conductors गिवन है, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है बाय मींस ऑफ ए फाइन वायर, ठीक है। द सिचुएशन इज लाइक दिस, यू हैव गिवन 2 spherical conductors and they have been connected by using a wire। इनके बीच में एक थिन वायर दी है जिसकी हेल्प से इनको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। एक की पोटेंशियल है कैपिटल V और एक की पोटेंशियल है नेगेटिव कैपिटल V, क्लियर। नाउ द लॉस ऑफ एनर्जी, आपको पता है जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट मींस द शेयरिंग ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस। तो देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना है। एंड लॉस ऑफ एनर्जी यू नो वेरी वेल, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू C1 C2 इनटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C1 प्लस C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो दिस वाज, हियर इट इज loss of energy, clear। so this is the loss of energy on sharing of charge, energy on sharing of charge। जब चार्ज की शेयरिंग होगी दोनों स्फीयर्स के बीच में तो इतना लॉस ऑफ एनर्जी होगा आपके पास। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप। हियर देखिए दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन,
both the spheres have capacity C. इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका कैपेसिटेंस भी C है, ठीक है। तो C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C, पहली बात। दूसरी बात, ये का पोटेंशियल पॉजिटिव है और दूसरे का पोटेंशियल नेगेटिव है। यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जैसे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग। देयरफॉर इक्वेशन 1 implies delta U is equals to, here it is C into C, means it is C square. Here it is capital V and here it is a negative capital V. So we can say it is a capital V minus and minus plus हो जाएगा, means it will be 2V whole square divided by 2. Here it is C plus C means a 2C. So it is here 2C. So you can calculate it. ठीक है, देखिए यहां पर आपके पास आ गया 4, 2 to the 4, C square V square divided by 4C. So 4 cancel C, आपके पास it means it is a CV square. So that is your answer. CV square is the loss of energy. So question number 10, option C. ठीक है, तो इस तरह से you can calculate the value of the loss of energy. Now next you see, you just go through the question number 11. Question number 11 is there, go through it. So here it is, question 11. Question 11 क्या बोल रहा है, देखिए in a Van de Graaff generator, a spherical metal shell is to be 10 into 10 raised to power 5 volt electrode. Van de Graaff जनरेटर में जो spherical shell है, ठीक है, spherical shell insulated stands के ऊपर रखा होता है, उसके ऊपर potential अभी आपके पास given है, that potential is given here. The value of capital V is given here. Capital V is equals to how much? This is given in the question, equals to 10 into 10 raised to power 5 volt. तो spherical shell है और spherical shell की जो voltage है, that is given here 10 into 10 raised to power 5 volt. The dielectric strength of the gas surrounding the electrode is also dielectric strength is given. Dielectric strength. Dielectric strength, you know well, this is the maximum value of the electric field which can be tolerated by the air or any dielectric without its breakdown. ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन है, that is given here 1 into 10 raised to power 6. 1 into 10 raised to power 6 volt per meter. This is the value of dielectric constant given here. Now the question is saying the minimum radius of the spherical shell is. देखिए, you have to find out the value of minimum radius. This is the spherical shell here, ठीक है, इसके रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली गई है, ठीक। इसका जो पोटेंशियल बताया है, V बताया है, that is 10 into 10 raised to power 5 volt. क्लियर? इसके चारों तरफ जो एयर हमने फिलअप की होती है, उस एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी गिवन है। तो यू नो वेरी वेल, सिंस E is equals to dV upon dr, here it is V upon r. ठीक है, V upon r. क्लियर? अब आपसे पूछा गया है, you have to find out the value of the radius. तो r is equal to V upon E. ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए, now what happens, क्या आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, you have to find out the value of the radius. क्लियर? अच्छा, अब देखिए हमारे पास V गिवन है, बट दिस कैपिटल E is not given. ये गिवन नहीं है, it means we have to find out the value of this capital E. So maximum electric field E is equal to 10% of ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपिटल E, इट इज इक्वल टू 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. Clear? So we can say the value of capital E is 10 by 100.
percent of dielectric constant, that is 1 into 10 raised to power 6 means it is 10 raised to power 6. You can say it is equals to, देखिए आपके पास कितना आ गया, it is a 10 raised to power 5 clear volt per meter. Now we have the value of capital E. Now we can substitute here in this equation, we can substitute the values. So therefore you can say let this is equation number 1 here. So therefore equation 1 implies equation 1 को देखिए क्या बनता है, equation 1 में substitute कीजिए values, ठीक है. So therefore equation 1 implies R is equal to capital V is given, that is 10 into 10 raised to power 5 clear, and capital E that we have calculated, it is a 10 raised to power 5. So we can say R is equal to 10 meter. That is your answer. And in question number 11, the option is A option. So it is option A. Clear? Now question number 12 is there. Just go through the question number 12. Question number 12 is very interesting question. It is saying that energy stored in a capacitor and dissipated. You have to find out the value of energy stored divided by energy dissipated. Energy stored and energy dissipated you have to find out in this question. In case of during the charging of a capacitor, तो देखिए जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो हमें ये फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर की जब चार्जिंग हो रही है देन फाइंड आउट दिस रेशियो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एंड एनर्जी डिसिपेटेड. देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस जनरली, व्हाट हैपेंस अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर गिवन है, इसको हमने चार्ज करना है तो इट मींस वी हैव टू कनेक्ट इट विद सम बैटरी. किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू सम की और स्विच, ठीक है. तो देखिए बैटरी से जब चार्ज मूव करेगा ये वाली प्लेट क्या होती जाएगी, पॉजिटिव, और ये वाली क्या होती जाएगी, नेगेटिव चार्ज. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन बोथ दीज प्लेट्स. क्लियर? तो देखिए यहां से जब चार्ज चल रहा है, लेट चार्ज Q इज मूविंग फ्रॉम हियर, Q मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए W हियर वर्क डन बाय बैटरी, क्योंकि बैटरी में ही वर्क करना है टू सेंड दिस चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो W इज इक्वल टू V इंटू Q. अगर Q चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V विल बी क्रिएटेड. सो W इज इक्वल टू V इंटू Q. दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी. बैटरी ने इतना वर्क क्रिएट करना है. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस चार्ज Q इज मूव्ड बाय द बैटरी. बैटरी का अपना पोटेंशियल है दैट इज कैपिटल. तो कितना बैटरी की वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, कितना वर्क कर सकती है बैटरी, दैट इज V इंटू Q. लेकिन जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, बट एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर. कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ Q इंटू V. आपको याद हो अगर हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, उसमें से एक फार्मूला है हाफ Q इंटू V. देखिए अब बैटरी वर्क कर रही है VQ वर्क करने के बावजूद भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कैपेसिटी कितनी, हाफ QV. ये आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द रेशियो. तो देखिए इसका मतलब है ये तो एनर्जी स्टोर हो गई, ये टोटल वर्क हुआ, तो बाकी की एनर्जी कहां गई. इट मींस जो W और एनर्जी स्टोर्ड का डिफरेंस है वो क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी. इसका मतलब 50% ऑफ दिस वर्क डन इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हुआ. ठीक है, क्यों वेस्ट हुआ, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे देन देयर विल बी स्पार्किंग ऑफ लाइट. स्पार्किंग ऑफ लाइट कहां से आई, स्पार्किंग मींस
there is wastage of energy. That is the wastage of energy you can say. ठीक है, तो इसलिए यहां से QV ही एनर्जी चली थी, लेकिन उसमें से 50% क्या हो गई, वेस्ट हो गई, एनर्जी डिसिपेटेड हो गई ड्यूरिंग चार्जिंग, and remaining energy 50% is stored by this capacitor. इसका मतलब in case of capacitor what happens, ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं during charging of कैपेसिटर की जब चार्जिंग होती है तो 50% ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड, ठीक है, एंड रिमेनिंग इज स्टोर, ठीक है। तो अगर एनर्जी एक U है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, U बाई 2। तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ गया फिर, तो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड is equals to, now find out the ratio. You can find if it is energy stored, अगर E है तो this is equals to means it will be 2 by 1, ठीक है। तो रेशियो, the right option is, that is your C option, तो question number 12 C option, ठीक है। So this is sufficient for the day. Remaining questions we will discuss by tomorrow. Till that, bye bye.